Good evening, Didi. Good evening, ma'am. Good Ma'am, evening, good ma'am. evening. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good morning. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good 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 evening, Good evening, everyone. ma'am. बच्चे Good evening. क्लास ना ऑन मंडे, आपने मंडे को क्लास नहीं हुई थी आपकी, राइट? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. I will take that class Yes, on ma'am. Friday. Friday को ले लो मैं वो क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Okay, what we did in last class? Part of speech are we done? मैम थोड़े से पार्ट्स रह गए थे. Are we done with this slide? ये स्लाइड हो गया था आपका? Yes, ma'am. 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 Just hold for 1 second. One page is missing.
Now take screenshot of this page. Is this visible to you now? Clear? Take screenshot of this page. Okay. Now noun are naming words. Okay. ठीक है? It may be a name of a person, place, thing, idea. One new thing is there for you. Idea and animals. ठीक है? Mother, father, red. The place we can talk about like Asia, India, Indian Ocean, school, and you can say garden, hospital. ठीक है? जहाँ पे भी आप जा सकते हो, where you can move. So think of that place, and that place is a noun. Things which we use in our daily life. So all things come under this category. Now, and animals, as you know, all animals are noun. Now we have one more new thing, idea. Idea is honesty. जो चीज आप think कर सकते हो ना, जो which can come to your mind, which you think. So that is also a noun, like honesty, friendship, loyalty, anger, wisdom. Is there any confusion in these words? Idea, honesty is ईमानदारी, friendship is दोस्ती, loyalty is वफादारी, anger is गुस्सा, wisdom is बुद्धिमत्ता. ठीक है? You use your brain for your wisdom, memory to store it in your mind. अपने दिमाग में इसको स्टोर करना, memory. ठीक है? याद रखना, यादाश्त याद रखना. So wisdom is बुद्धिमत्ता. How intelligent you are, how effectively you use your mind. ठीक है? Both are related to mind. यहाँ पे आप चीजों को स्टोर करते हो. ठीक है? अगर आप कोई चीज याद करते हो ना कि मैंने ये कल क्या किया था, तो वो दैट इज योर यू यूज योर मेमोरी. एंड विजडम इज मुझे ये काम कितने अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ. आप जो आइडिया लगाते हैं, दैट इज विजडम. ओके ओके मैम. बेटा, ओके मैम. when you come across these words ना, जब भी आप कोई नए वर्ड से आते हो, दो वर्ड्स आपको लगता है कि they are inter, that seems like कि सेम सेम लगते हैं आपको, उनमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स प्रॉपरली. ठीक है? उससे रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ आते ना, तो ट्राई टू फाइंड आउट सेंटेंसेस रिलेटेड टू दैट वर्ड, तो यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. In noun, we have noun numbers, noun gender, and type of noun. These three things we are going to do in our classroom. ठीक है? Noun numbers, where we tell whether it's a one thing or a one and many. Like you say book or books. ठीक है? जिसका हम plural बनाते हैं. So that comes in this noun number, which tell you number. It's a one or more than one. One. Noun gender, जिसमें आपको उसकी कैटेगरी पता चलती है. Noun is a masculine, feminine, common gender और neuter gender. देखो, अभी तक आप जब noun gender पढ़ते थे तो only two, you were covering only two. ठीक है? But here we have one more category, gender, common gender and neuter gender. हमारे पास अभी और है. ठीक है? Total we have 5 in this category. Masculine, जहाँ से हमें he का पता चले. ठीक है? Common gender, where you specify to particular. It may be like baby may be he baby or she baby. ठीक है? दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है. स्टूडेंट्स, देखो, टेक दिस एग्जांपल. यस बेटा, see these are girls, okay, and these are boys. Your ma'am wants to call them. देखो, in some, oh, I'm so sorry. ये girls हैं and they are boys. ठीक है? Now your ma'am wants to call. आपकी मैम बुला रही है इसको.
इसका पर्टिकुलर नेम है, लाइक सीता इज नेम, हर नेम इज सीता, तो मैम विल से सीता कम हियर, ठीक है। इसका भी अपना नाम है, लेट्स सपोज वीना, हर नेम इज वीना, सो वीना कम हियर, प्रॉपर नेम, दीज आर प्रॉपर नाउन। सो अगर मैम इन सभी गर्ल्स को बुलाती है तो व्हाट मैम विल से हियर, ओके, एंड बॉयज कम हियर। लेकिन मैम अगर पूरी क्लास को बुलाना चाहती है, बिकॉज दिस इज वन क्लास, सो व्हाट मैम विल से स्टूडेंट्स, ओके। ओके मैम। कैटेगरी में बॉयज भी है मैस्कुलिन, गर्ल्स भी है फेमिनिन, इट माइट इंक्लूड्स बोथ, ये दोनों को भी इंक्लूड कर सकता है और एक इन दोनों में से एक कैटेगरी को भी इंक्लूड कर सकता है। All non-living things, all non-living things. I'm getting voice. All of you mute yourself. Or mute beta. Mute yourself, all of you. Okay. All non-living things come under neuter gender. देखो इंक पॉट है, आप इंक पॉट में नहीं बता सकते कि इट्स अ गर्ल और अ बॉय। टेबल है, कैन यू टेल मी जेंडर ऑफ अ टेबल, इट्स अ मैस्कुलिन और फेमिनिन? इज इट पॉसिबल? नो मैम। बच्चे यू कैन आंसर करके फिर म्यूट कर लेना, ठीक है। यू कैन नॉट टेल जेंडर। वुड का कोई आप जेंडर बता सकते हो? चेयर? नो मैम, होता ही नहीं दीदी वुड का जेंडर। कम अंडर न्यूटर जेंडर, जिनका आप जेंडर नहीं बता सकते दे आर न्यूटर जेंडर, और जिनमें दोनों भी हो सकते हैं, दोनों जेंडर भी हो सकते हैं, और इनमें से दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन में से एक जेंडर भी हो सकता है, दैट इज कॉमन जेंडर, ठीक है, लाइक बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर। So these are examples. So noun gender we have 4 categories. Till now you have done these 2, and in this class you will go for common gender and neuter gender as well. Now we have type of noun. One more is there, material noun. It's not written. Material noun. मटेरियल नाम वो होते हैं जो किसी चीज के बने होते हैं, ठीक है, लाइक गोल्ड, जो मटेरियल के बने होते हैं, गोल्ड, सिल्वर। यू आर रीडिंग साइंस ना, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, iron. So these all are material noun. जो कोई चीज किसी मटेरियल की बनी है, so that is material. Now first of all, proper noun. जब हम किसी का पर्टिकुलर नेम लेते हैं, वन नेम इज फिक्स टू द पर्सन, एक बॉय है उसका नेम है रवि, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। दैट नेम कैन नॉट चेंज, वो नेम डेली चेंज नहीं हो सकता उसका, ठीक है, दैट नेम इज फिक्स्ड, पहचान नाम है, सो लाइक टीना, रवि, प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखो, वन बॉय इज रवि, वन इज सुनील, ठीक है, वन इज सनी, अगर दे आर प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम कौन सा दे आर मैस्कुलिन जेंडर, दे आर मेल, ये सभी मेल है ना, I am not getting participation.
अश्वीर म्यूट योरसेल्फ, जे आंसर करके फिर म्यूट। यस, व्हाट देयर कैटेगरी, इनकी कैटेगरी क्या है? मैम मेल। दे आर मेल, ठीक है, ये मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉमन नाउन लाइक मैन, सिटी, रिलीजन। जब आप इन जनरल बात करते हो ना, सिटी है, सिटी इज दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, अमृतसर। आपको पता है कि आप एग्जैक्टली किस सिटी की बात कर रहे हो, सो मेनी सिटीज आर देयर, लेकिन आप पर्टिकुलर इन 3 सिटी की बात कर रहे हो, सो दैट कम्स इन प्रॉपर नाउन। लेकिन आप जनरली अगर सिर्फ सिटी की बात कर रहे हो, आपको ये नहीं पता आप किस सिटी की बात कर रहे हो, सो दैट इज कॉमन नाउन। Is this clear difference between proper and common noun? Any doubt? Yes. Now, collective noun. It refers जब हम कुछ चीजों को like it may be a group of people, group of place, thing, जब हम इनकी ग्रुप कर देते हैं तो it comes under collective noun। जब हम उनको कलेक्ट कर देते हैं, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, एज अ होल उनको एक बना देते हैं। लाइक सी इन फैमिली यू मे बी हैव अ बेबी, ठीक है, स्मॉल गर्ल, स्मॉल बॉय, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, मदर, फादर, ठीक है। जब डिफरेंट डिफरेंट को हमने ग्रुप किया तो व्हाट दिस ग्रुप इज कॉल्ड फैमिली? मैम कलेक्टिव नाउन। सो इट्स अ कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। नाउन। फ्लॉक मीन्स झुंड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं, कोई स्पैरो है, कोई क्रो है, तो देयर ग्रुप इज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ऑडियंस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियंस? एनीवन? मैम दर्शक। मैम दर्शक। यस, मैम दर्शक। मैम दर्शक। यस, मैम दर्शक। मैम दर्शक। people who are watching or listening to maybe anything like किसी को सुन रहे हैं या they are listening to any play, concert and all, so that is audience, ठीक है। so this is abstract, sorry, collective noun. Now abstract noun, all those nouns which we can feel, जिसको हम feel कर सकते हैं, we can feel but we cannot touch, इनको touch नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक बिलीव, विश्वास, जब आप विश्वास करते हो यू कैन नॉट टच योर विश्वास, ठीक है, यू कैन फील इट। प्राइड, घमंड, आप घमंड को फील कर सकते हो, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते। हेट, हैप्पीनेस, सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विच वी कैन फील, जिनको हम फील कर सकते हैं। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लाइक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना इज लाइक योर पेंसिल, योर पेन, दे एग्जिस्ट, आप उसको टच कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन नॉट टच इट। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन यू कैन काउंट द इन नंबर्स, नंबर्स में आप इनको काउंट कर सकते हो, लाइक पेंसिल, क्लॉक, ट्रेन, बट अनकाउंटेबल नाउन, इन अनकाउंटेबल नाउन you have this word sorry, un is prefix, able is suffix and count is the root word, ठीक है। un है prefix, prefix un, what do you mean by un? prefix un का क्या मीनिंग है? and this is suffix, 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 and this is root word, okay। so we cannot count them, हम इनको काउंटिंग कर सकते, like milk you cannot count, music, food, snow, rice, you cannot count these things, ठीक है। आप नहीं बता सकते कि मिल्क है, आपको जो आपने खाना खाया है कितना खाना खाया है, स्नो कितनी स्नो है, आप इनको नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते। जिन चीजों को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी अनकाउंटेबल नाउन। Now next is compound noun. When we combine, COMBINE, when we combine or join
टू और मोर वर्ड्स, दो या दो वर्ड से ज्यादा को हम ज्वाइन करते हैं तो दैट इज कंपाउंड नाउन. लाइक सन इन लॉ. कैन यू टेल मी विच वर्ड्स आर ज्वाइंड हियर? मैम इन. सन, इन एंड लॉ. ठीक है. क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट इज उधार लेना. कार्ड, जिस कार्ड, द कार्ड यू रिसीव इट फ्रॉम बैंक which helps you to take credit, जो आपको क्रेडिट लेने में, उधार लेने में मदद करता है, that is credit card. So credit अलग word है. credit means उधार, card means जो ATMs और ये cards होते हैं. When we are combining these two words, it become credit card. Can you give me some more examples of compound noun? Mother-in-law. मैम फादर इन लॉ. Law, cat मैम food, सिस्टर इन sister लॉ. in law, कुछ अलग, sister in law, कुछ अलग. ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस. ठीक है. lighthouse, यस, लाइट हाउस. कैट हाउस, सॉरी कैट फूड. ठीक है. जब आप दो वर्ड्स को जोड़ के नाउन बनता है, सो दैट इज कंपाउंड नाउन. नाउ गो, लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज. We have this list of common and proper noun. Just go through this. If you have any issue, you can ask me. ठीक है. You need to understand it very briefly. आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में फिक्स नेम है. सिटी का, अगर सिटी की बात करें तो सिटी का नाम है, दैट इज प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन इज सिटी. ठीक है. आप किसी कंट्री की भी बात कर रहे हैं, एनी कंट्री, सो दैट इज कॉमन नाउन. लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, कंट्री का नेम लेके बात कर रहे हैं, तो दैट इज प्रॉपर नाउन. नाउ सेम हियर, लाइक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एनिमल्स में से काउ की बात करें, फेलो, कैट, लायन, डियर, सो दैट इज प्रॉपर नाउन. ऐप is a common noun. If you're talking about a particular app like Facebook, Insta, and so many apps are there, so that is proper noun. Author, author who writes the book. ठीक है. Who writes? Robert. Can you tell me some more names of authors? Yes. जब आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपकी पोएम के नीचे ऑथर लिखा होता है, आप ध्यान से देखते हैं दैट ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर. Michael Rosen. यस. मैम विलियम वर्ड्सवर्थ. योर वॉइस इज नॉट. शिव मुखर्जी. मैम हरिवंश Lee राय. General. मैम वंदना लोहार. विलियम वर्ड्स. Okay. Biscuit, books. Just go through this page once so you can get idea. You can take screenshot also. River, schools. देखो, आपको इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. लेट्स सपोज आप न्यूज़पेपर की बात करें. अगर आप, अब आप देखो कि न्यूज़पेपर के कोई नाम भी होते हैं, अगर उसकी फिक्स नेम है ना, तो दैट इज प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर की बात करें, ओशंस है, ओशंस के और भी फर्दर नाम होते हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सो दैट इज, दिस इज कॉमन नाउन एंड दे आर प्रॉपर नाउन. पार्क, प्लैनेट. ठीक है. Now take screenshot of this. You have to understand these things. ठीक है. Just give 5 minutes to yourself after the class and revise it. In next class we will proceed for nouns further. ठीक है. जो बाकी है collective nouns and बाकी nouns है, we will complete that. Clear? Okay, ma'am. Yes, बेटा. मैम मैंने ये पूछना था कि मैम कंपाउंड नाउन्स को एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे. Yes, compound nouns are combination of two words that become noun. जब हम दो words को join करके noun बनाते हैं, तो that is compound noun.
like a lighthouse. Give me some more examples. मैम बुल और डॉग अलग अलग मिलके एक एक सिंगल नाउन हो जाते हैं। देखो, प्ले ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड, प्ले मीन्स खेलना, ग्राउंड मीन्स मैदान, ठीक है। लेकिन ग्राउंड में भी, ग्राउंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। ग्राउंड के बहुत अलग अलग पर्पस होते हैं। इट मे बी अ ब्लैंक और इट मे बी यूज्ड टू प्ले। लेकिन व्हेन यू आर सेइंग ना प्ले वर्ड और ग्राउंड वर्ड को जोड़ते, इट बिकम्स प्ले ग्राउंड। इट मीन्स खेलने का, इट्स अ स्पेस टू प्ले, ये खेलने की जगह है। क्लियर? So these are different two words, but when we combine them, some new meaning comes out of that. कुछ उसका अलग meaning आता है। Now take one example like snow, snowfall. Fall means snow means baraf. When you combine them, it becomes snowfall. ठीक है? Snowfall is a noun. Clear? मैम Yes. मैम हम रीजॉइन की एग्जांपल दे सकते हैं कंपाउंड नाउन में? Rejoin. यस मैम। बेटा rejoin करना action ना, action, join करना, rejoin करना, it's an action. Okay? Yes. मैम countable noun, compound noun. You are asking some Father-in-law, F greenhouse.